Hello student, welcome to Pi5 Study YouTube channel. Today we will discuss about differentiation. In differentiation we will discuss algebraic, trigonometry, matrix, inverse and some special function. How you can find out the differentiation of that kind of function. Let us start. So a differentiation means it's a slope of any function, first derivative of any function. So if you have to given any function and you found the first derivative of that function, then it is called the first derivative of this function. That means this represents the slope of the given function. So if like this is you can see here, if there is a curve of a to av and you will pick 2 points a and b. The coordinate of a is x1 y1 and coordinate of b is equal to x2 y2. So in between a to b, if you will find any small segment like this point in this region, so this small interval on y-axis, this small interval on y-axis and small interval on x-axis, the ratio of this and to this is called the first derivative of this function. Now it is nothing but the slope of this line AB. On this curve AB you have picked 2 points A and B, and when you will join the point these 2 points A and B, then this line makes some slope from the x-axis, that is called the inclination of this line, and the tan of this angle is called the first derivative of this line. That means slope of line AB with respect to AC. So slope of AB is BC divided by AC, and slope of, and I have told you y2 minus y1 is equal to delta y and x2 minus x1 is equal to delta x. So slope of line AB is equal to delta y by delta x. Now apply the limit on this. So limit here delta x tends to 0 and delta y tends to 0, delta y by delta x is equal to dy by dx. अब ये जो dy by dx है ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y है. Now there is some formula, some rule which will you need when you will solve the question of derivation, first derivative, second derivative or some kind of complex problem. So first rule is product rule. Product rule is when you have two functions fx and gx and you have found the derivative of this function, then how you will find f dash x into gx plus fx into g dash x. मतलब पहला फलन पहले फलन का अवकल गुणांक इंटू दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकल गुणांक. देखो डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन, और डिफरेंशिएट जो कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है उसको बोलते हैं अवकल गुणांक. नाउ कोटेंट रूल क्या होता है? अगर आपको फंक्शन पी वाई क्यू के रूप में दिया गया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और इसका डिफरेंशिएशन लेना है, तो आपको क्या करना है कि हर जो यहाँ पे डिनोमिनेटर हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक. तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जब आपको पी वाई क्यू के रूप में फंक्शन दिया रहे. नाउ चेन रूल क्या होता है? चेन रूल का मतलब अगर आपको कोई कंपोजिट फंक्शन दिया जैसे एफ ऑफ जी एक्स, अब आपको इसका डी डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स. मतलब पहले ये पूरे का निकालिए फर्स्ट डेरिवेटिव, अब इसके अंदर भी एक फंक्शन है जी एक्स, तो इसका भी एक फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे. अगर आपको एक एग्जांपल के रूप में ऐसा कुछ दिया हो जिसमें आपको फाइंड करना हो डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स आपको निकालना किसका है? एफ ऑफ
x का। तो कैसे निकालेंगे, पहले इतने का डी डी एक्स आप निकालेंगे। पहले या तो इधर से निकालें या तो इधर। पहले हम क्या करते हैं कि पहले इतने का निकालेंगे, इसका डी डी एक्स, तो एफ डैश इसका, इस वाले का एफ डैश हो जाएगा। फिर इतने का निकालेंगे, फिर इसमें अगर एक्स के प्लेस पे कोई और फंक्शन है, किसी फंक्शन ऑफ एक्स है तो उसका निकालेंगे। मतलब इस चेन रूल में होता क्या है कि आप पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, ऐसे जितनी बार भी इसका रहता है हम डेरिवेटिव निकालते हुए चले जाते हैं। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव का जो रूल होता है हमने आपको पहले बता दिया, ये डी वाई बाई डी एक्स को हम लिमिट से भी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द चेन रूल। चेन रूल हमने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। इसमें क्या होता है कि अगर इस टाइप का फंक्शन है, अगर एक एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका जो डिफरेंशिएशन कैसे डिफरेंशिएट इसको कैसे करेंगे, दोनों साइड से आप लॉग ले लीजिए, लॉग इधर भी लॉग ले लीजिए, इधर भी लॉग ले लीजिए, तो आपको आराम से निकल जाएगा। अब सेकेंड, अगर y इक्वल टू एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स और जी वन एक्स इंटू जी टू एक्स ऐसा कुछ दिया है, इधर भी दोनों साइड से लॉग लीजिए, तो लॉग लेके लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करिए, देन यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ जैसे हमने आपको बताया कि पहले स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि यहाँ पे जो हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे वो थोड़ा सा आसान तो होंगे, बट यू हैव टू थिंक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लाइक इफ यू हैव वेरी मच प्रैक्टिस्ड अबाउट दिस differentiation, then you can easily do, but if you haven't try earlier, then you have to face problem, like you will be going to face some problem to solve this type of question, because this type of question need to have practice to solve in a better manner. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको आगे बता ही रहे हैं। नाउ listen, if y this function is given, so what you will do, you start to solve from this side. First solve this one, then you will get this, then you will get some common things in between them, take the common and then solve, then you will get some common in this and this, then you will get common of this and this and this, then again when you solve this, then you will get this. So this is a kind of the y is equal to x cube upon x minus a, x minus b, x minus c. So log y is equal to 3 log x minus log x minus a minus log x minus b minus log x minus c. हमने क्या किया, यहाँ पे y is equal to जो इतना लिखा था इसमें जस्ट log की प्रॉपर्टी को लगा दिया, अब हमें ऐसा मिल गया। अब नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट इट। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log y का क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या कि y जो फंक्शन ऑफ x है, इसलिए log y का 1 बाई वाई होगा, लेकिन y को फिर एक बार करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, और इधर तो सारे x के फंक्शन है तो इनका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब y को इधर ले जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ से y यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ 3y(x) था तो 1/x को सभी के साथ कर दिया तो हमें कुछ ऐसा मिल गया। नाउ वी कैन डायरेक्टली शिफ्ट y इन दिस साइड, देन dy बाई डी इक्वल टू दिस, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। y इक्वल टू tan इनवर्स ln e बाई एक्स स्क्वायर अपॉन l e x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 ln x अपॉन 1 माइनस 6 ln x। फाइंड आउट द dy बाई डी एक्स। इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू अप्लाई द log प्रॉपर्टी at numerator and denominator. So when you will apply the log property, then you will get y is equal to 1 minus 2 ln x upon 1 plus 2 ln x, and in this point you will do 3 plus 2 ln x as written as, write the same thing, and 1 minus 6 ln x, write 2 into 3. So 6 is equal to 2 into 3. So 1 minus 3 into 2 into ln x. So you will find that this is a kind of
this what it is, this is a kind of formula, tan inverse x minus y 1 plus tan x into tan y. So you can write this one is tan inverse 1 minus tan inverse 2 ln x. Similarly you can write this one also. So tan inverse 2 ln x and tan inverse 2 ln x will be cancel out. So you will be remaining as y is equal to tan inverse 1 and tan inverse 3. Two term you have remaining. These term are constant. So constants means when you will take d by dx is equal to k, then what it will be comes out, it will be comes out to 0. So in this way you can directly solve this type of question. Now you have this another question, y is equal to ln 7 ln x base 7. So you have to apply some log property of log. So I have taught you in the previous module how you can apply the property of log. So apply a property log means you have to put the same base at numerator and denominator, base e. Then you can write this thing like this. Then this will be constant function, take it outside. Then differentiate the remaining function. So how you will differentiate it? 1 by this is ln x, so 1 by x, 1 upon log x base 7. Then differentiate log 7 x means log x base a kind of thing. This will be, so when you will differentiate it you will get dy by dx equal to 1 upon x ln 7 whole square ln 7x. So I would say you ki remember the formula at least for differentiation. Once you remember the formula of differentiation, you can easily find out the reverse of that, means formula for integration for almost every case. Now इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों, अब इसमें आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा कि 1 माइनस एक्स 1 माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. अब इसमें एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा. ये पैटर्न कैसा है कि अगर हम x को cos थीटा मान लें और y को sin थीटा मान लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक पैटर्न मिल जाएगा, मतलब ये कैंसिल आउट होकर के एक इक्वेशन बन जाएगा, एक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड का साइन इन्वर्स ले लेंगे. साइन इन्वर्स लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो फार्मूला लिखा है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का ये फार्मूला है. अब इधर क्या 1 है तो साइन इन्वर्स 1 कर देंगे. अब साइन इन्वर्स 1 पाई बाई 2 होता है, इधर होता है. अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हमने साइन इन्वर्स एक्स का आपको फार्मूला बताया था, डिफ्रेंशिएशन का ये होता है, वाई का ये होता है. अब हमने 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख तो दिया, लेकिन ये वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हमने किया रे कॉन्स्टेंट, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 1 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा. नाउ another problem, y is equal to cos inverse x to the power 4 by 3 minus 1 minus x square 1 minus x to the power 2 by 3. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अब हमें कुछ यहाँ भी कुछ पैटर्न दिख रहा है, जो cos इनवर्स का टर्म होता है कुछ पैटर्न दिख रहा है. अब पैटर्न का मतलब क्या है कि हम x जो x to the power 4 by 3 है इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि x to the दो पार्ट में कुछ ऐसा लिखें कि x और x टू द पावर 2 by 3 जैसा कुछ मिले. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं. लेकिन एक चीज़ और करें कि इस वाले टर्म को कुछ एज्यूम करें, जैसे 1 माइनस दिस. तो हमने क्या माना, x टू द पावर 2 by 3 इक्वल टू टी और x स्क्वायर इक्वल टू टी क्यूब. सो x टू द पावर 4 by 3 क्या होगा, टी क्यूब. अब इस सारे जो t के टर्म में हमने एज्यूम किया उसको हम इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं. लेकिन उसके पहले जो x टू द पावर 4 by 3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स टू द पावर 1 by 3. अब हम पुट करें t के टर्म में, तो जब t के टर्म में हम पुट करेंगे तो हमें कुछ जो t के फॉर्म में मिलेगा और वो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस वाले इक्वेशन को. जैसे दिस
कॉस इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है इक्वल टू कॉस इनवर्स यक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे यक्स क्या है, यक्स क्या है, यक्स है, और वाई क्या है, एक्स टू द पावर 1/3। तो इस फार्मूले के यूज से अब हम यहाँ की बात कर लेंगे, इस ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने इस पूरे चीज़ को ऐसा लिख दिया। नाउ वी कैन इजीली डिफ्रेंशिएट कॉस इनवर्स एक्स का आपको पता है तो ऐसे कर दिए, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसको अब पूरे को करना है, पूरे को, तो इसका पहला हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स टू द पावर 1/3 है तो 2/3 हो जाएगा। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, या इसका भी अब डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स टू द पावर 1/3। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1, तो ऐसा मिल जाएगा। ये तो हमने जस्ट कर दिया, लेकिन और बेसिक से अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो आपने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, एक्स टू द पावर, आपको फिर से एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे आपने एज्यूम किया एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल टू, आपने मान लेते हैं आपने एज्यूम किया जेड, ठीक। अब दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करिए, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर 1/3 और -1, इधर 1/3 बाहर, 1/3 ये हो जाएगा एक्स का। अब ये dx हो जाएगा इक्वल टू dz। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो अब हमारा जो एक्स टू द पावर एक ऐसा बन गया कॉस इनवर्स जेड हो गया। कॉस इनवर्स जेड को क्या लिख सकते हैं, 1/-1/1 माइनस जेड स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएशन होता है। अब जेड की वैल्यू को क्या करेंगे, जेड की वैल्यू को क्या लिखना है, एक्स टू द पावर 1/1 जो, और डी जेड इसको जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब डी जेड के प्लेस पे ये पूरा लिख देंगे, तो मतलब हम इसको ईजिली जब लिखेंगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा, 1/3 दिस टाइप ऑफ फंक्शन हमें मिल जाएगा। नहीं तो जस्ट आपको कॉस इनवर्स एक्स टू द पावर 1/3 आपने क्या किया, इसको एक्स इसको जेड मान लिया, तो इसका हो गया 1/1 माइनस जेड स्क्वायर। जेड के प्लेस पे क्या लिख दिया, एक्स टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। फिर आपको क्या करना है कि जो बचा हुआ टर्म एक्स टू द पावर 1/3 इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो आपको दूसरे वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन मिल गया, मतलब एक्स टू द पावर 2/3 इक्वल टू dy/dx। तो इस प्रकार से भी आप डिफ्रेंशिएशन ईजिली निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 2 cos x cos 3x। नाउ यू हैव टू आस्क, सो फाइंड आउट द d टू द पावर 18y एंड dx 18। मीन्स आपको इसका जो डेरिवेटिव 18th टाइम निकालना, 18 बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। सो how you will do this type of question? First, this is a form of 2 cos A into cos B. Apply the cos A into cos B then, and apply the formula 2 cos A into cos B, then you can find in this way. Now then start derivating. अब डेरिवेटिव अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऐसा मिलेगा, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे ऐसा मिलेगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव में कुछ पैटर्न मिल रहा होगा, ये 16 इसको 4 स्क्वायर लिख दिया एंड 2 को 2 स्क्वायर लिख दिया, तो इस प्रकार का आपको पैटर्न मिलेगा। तीसरी बार जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऐसा मिलेगा, चौथी बार करेंगे ऐसा मिलेगा। तो अब जैसे जैसे इसको डेरिवेटिव करना जा रहे हैं आपको एक पैटर्न मिल रहा है 4 टू द पावर 1 2 3 ऐसे करके, पहले में 1 मिला, चौथे में 4 टू द पावर 4 मिला, 2 का पैटर्न मिल रहा है। तो आप ऐसे जब 18 टाइम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -4 टू द पावर 18 cos 4x माइनस 2 टू द पावर 18 cos 2x। तो आपका जो आंसर है यही हो जाएगा। अब आपको कई बार 18 बार नहीं करना, आपको जस्ट पैटर्न फॉलो करना कि किसने में क्या पैटर्न। अब जैसे यहाँ पे 2 में माइनस साइन यहाँ पे रहा, फिर तीसरी और चौथी बार किया तो पॉजिटिव साइन था, लेकिन अब 4 बार में स्टार्टिंग के दो बार आपको नेगेटिव साइन मिल रहा है। इसका मतलब है कि आप 16 बार करेंगे तो
यहाँ आके ख़त्म हो गया पॉजिटिव पे, लेकिन जब 17 बार करेंगे तब भी माइनस का साइन आएगा। 18th टाइम में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा, इसलिए जो 18th टाइम का डेरिवेशन होगा ऐसा कुछ हो जाएगा जो दोनों जगह माइनस साइन है। तो इस प्रकार आप तो कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको ईजिली 2-3 स्टेप में 4 स्टेप में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, सो डी एन एफ बाई डी एक्स एन एट एक्स इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू आपको एक्स इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। 1/1 प्लस एक्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर लिखेंगे इंटू न्यूमरेटर का फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ न्यूमरेटर लिखेंगे डिनोमिनेटर का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपको कितना मिलेगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न मिल रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर पहले 1 थी, जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करें तो इसकी वैल्यू 2 पावर आ गई, 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया 3 आ गई, 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया 4 आ गई। मतलब ये n प्लस 1 टाइम्स फॉलो हो रहा था। इसको क्या लिख सकते हैं, जब एक्स टू द पावर जब n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस n टू द पावर n प्लस 1, और जो ऊपर वाला टर्म है ये 1 प्लस 2 प्लस 3। मतलब जब आप ऑड टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है तो माइनस मिल रहा है, लेकिन जब आप इवन पैटर्न में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस नेगेटिव साइन गायब हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको आप लिख सकते हैं -1 टू द पावर n। मतलब n की वैल्यू जब ऑड है तभी नेगेटिव साइन आएगा, और n की वैल्यू जब इवन है तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे नहीं आ रहा। अब इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स n, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। तो इस प्रकार अब हमें पूछा क्या गया कि ये तो अपना ये हो गया डी एन एफ बाई डी एक्स एन, ये हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि डी एन एफ बाई डी एक्स एन एफ एट एक्स इक्वल टू 0। सो व्हेन यू विल पुट एक्स इक्वल टू 0 देन यू विल गेट -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n। सो दिस इज योर आंसर। नाउ अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे आईआईटी में, जेईई मेंस में, और भी अदर जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते रहते हैं। इस टाइप के और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। नाउ हाउ यू विल सॉल्व, सी केयरफुली, दिस इज रिटन एज d2x बाई dy2। इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये d2y बाई dx2 नहीं लिखा है, यह लिखा है d2x बाई dy2। सो और आपके पास 4 ऑप्शन है, अब कौन सा चूज करना है आप चूज करिए। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना। आपको क्या करना है कि एज्यूम फर्स्ट समथिंग, यू हैव टू एज्यूम, लाइक यू कैन राइट dx बाई वाई dx बाई dy इक्वल टू 1/dy बाई dx। अब 1/dy बाई dx को आप क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx टू द पावर -1। अब एक बार आप डिफ्रेंशिएट करिए d2x बाई dy2। अब इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा -dy बाई dx होल -4 टू द पावर -2। अब आपने x अब y के रिस्पेक्ट में किया, अब आपको क्या करना होगा कि y को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस चीज़ को, ये जो dy बाई dx है। अब इसका जो एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा d2y बाई dx2। अब आपको केवल y भी फंक्शन ऑफ x है, तो y का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे y का तो आपने कर दिया, अब y के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बाई dy। अब आपको फाइंड क्या करना था, ये d2x बाई dy2। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को जब एक साथ लाएंगे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ लाएंगे तो -dy बाई dx होल टू द पावर -3 और d2y बाई dx2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला तो नहीं सही है, दूसरा आंसर सही है, और बाकी बी वाला ऑप्शन आपका
यहाँ पे सही हो गया। नाउ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स, फाइंड डी डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इक्वल टू एफ लॉग एक्स। अब इसमें आपको क्या करना है, जस्ट फर्स्ट थिंक हाउ यू कैन सॉल्व इट। लाइक एफ इनवर्स एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और एक्स की वैल्यू इतना दिया गया है। तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग। like fx is equal to assume y and y is equal to e to the power x plus x. so f dash x क्या होगा, e to the power x plus 1, इसका तो e to the power x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। now put gx is equal to f inverse x। हम एक एज्यूम करते हैं कि gx is equal to f inverse x, क्योंकि हमें यही निकालना है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं कि एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, कंपोजिट फंक्शन बना देंगे इसको इधर ला करके, तो एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसको डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, जो हमने आपको बताया चेन रूल कि मतलब एफ डैश जी एक्स प्लस जी डैश एक्स, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जी डैश एक्स इक्वल टू 1 अपान एफ डैश जी एक्स, इस एफ डैश एक्स को नीचे लाए इधर से। तो अब एफ डैश जी एक्स क्या हो सकता है, जो फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स प्लस 1। तो एफ डैश जी एक्स क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर जी एक्स प्लस 1। अब जी एक्स की वैल्यू आपको रखना है, जी एक्स आपने क्या माना, एफ इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आप जी डैश, यहाँ एक्स की प्लेस पे आपको क्या रखना है कि log 2। तो जी डैश log 2 आप रखेंगे तो 1 अपान ई टू द पावर log 2 आ जाएगा। तो log 2 कैंसिल हो जाए, ई टू द पावर ln 2 है तो ई कैंसिल हो जाएगा, log के प्रॉपर्टी से केवल 2 बचेगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1 अपान 3। तो जी डैश ln 2 इक्वल टू 1 अपान 3 आ गया। और जी डैश ln 2 को क्या लिख सकते हैं, जी डैश को क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स। और एफ इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसका एक फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया गया, इसका मतलब आपको जो 1/3 मिला है उसकी वैल्यू डी डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स मिल गई। तो इसका आंसर क्या होगा 1/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन जनरली यू विल फाइंड द सम बोर्ड लेवल बुक्स और some other kind of mathematic problem solving book. So you have, I think you know, if you don't know then listen carefully. इसमें आपको क्या करना, y is equal to रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस ऐसे से इन्फिनेटिव टाइम तक ऐड करना है। तो इफ़ you will hide these things, first root, then रूट साइन एक्स प्लस रूट फिर साइन एक्स। तो इसमें अगर आप ऐसा करें y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई लिख दें, इतने को ऐसे रहने दें, इतने को y हम एज्यूम कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, नाउ स्क्वायर द बोथ साइड एंड डिफ्रेंशिएट एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ, you will get dy by dx is equal to cos x upon 2i minus 1. Now again, what you will do in this type of question, you will shift this term on other side. So you can write x root 1 plus y is equal to minus y 1 plus x, then do square from both side, then x square, the term of x square is multiplied with 1 plus y and y square multiplied with 1 plus x. Then take x square minus y square in one side and this one is another side. So there will be some common factor x minus y from both sides, this will be cancelled out. So you will be remaining with x plus y is equal to x minus xy. So y is equal to minus x upon 1 plus y. So dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x square. So in this case your main task is arrange this function in terms of some
some easy type of function, some simplification form like this, then you can easily differentiate or you can find the first derivative of this function. Now if y square is equal to px, so and 2 d by dx y cube into d स्क्वायर वाई अपन डी एक्स टू इक्वल टू क्या होगा आपको ये फाइंड करना है. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया है, सो इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में. सो 2y dy by dx इक्वल टू p dash x. नाउ what you will do, again differentiate one time, then you will get this. Then you can write this y d2y by dx2 plus this one is dy by dx whole square equal to p double dash x. So again try to some now try to some arrangement, try to do some arrangement. How? Multiply both side by y square, so you will get like this. Then this term and this term will be, how you will be, this term will be same, and in this term you will put the value of dy by dx from there, and you will get this. Then again you will take dy dx 2y cube plus this kind of function plus this, means what you have to do, you have to put a whole function in terms of p, like you know px, you know p dash x, and you know p double dash x. So put this value in terms of p and p dash and p double dash. So you will be find this as a px plus p triple dash x. So your option B is correct. Now fx is equal to x, fx is equal to fx x plus y is equal to fx into fy. So in starting module I have told you which type of function is it indicating. So it is indicating e to the power x type of function. So assume fx is equal to e to the power kx. Now these two conditions are given and you have to find this one. So f5 is equal to e to the power 5k is equal to 2, and f dash x is equal to k e to the power kx, and f dash 0 is equal to 3. So 3. So you will find k is equal to 3. Then your function is fx is equal to 3 kx. So f dash, so in this case f dash x is equal to k means 5 e to the power 5 x. So in this way you can find the function of this, like k e to the power 5k. So e to the power 5k you can write as a 2. So 3 into 2 is equal to 6. So answer is 6. Now f double dash x equal to minus fx, and f dash x equal to gx, and hs is equal to this one. So you have to find, and h5 is equal to 11 and h10 is equal to आपको फाइंड करना है. अब इसमें क्या करना है कि सिंप्लीफिकेशन, जस्ट सिंप्लीफिकेशन. यू कैन राइट एफ एक्स एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी एक्स होल स्क्वायर, एच डैश इज इक्वल टू 2 एफ डैश एक्स 2 जी एक्स डैश एक्स, एच डैश इज इक्वल टू 2 एफ एक्स, एंड फ्रॉम दिस you can write gx plus 2 gx and g dash x is equal to, and gx plus g dash x is equal to, you can write this one as this kind of function fx. So h dash x is equal to 0, because when you will from this to this, like from this to this, you can write g dash x is equal to f double dash x and f double dash x is equal to minus f x. So यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो यह टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो एच डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एच एस इक्वल टू के हो जाएगा. अब एच एक्स क्या मिला, कांस्टेंट फंक्शन.
एच 5 की वैल्यू कितना दिया है, 11 दिया, लेकिन एक कांस्टेंट है, मतलब एच की वैल्यू 5 पे दिया हो या 10 पे दिया या 1000 पे दिया, किसी पे भी एच की वैल्यू दिया हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, एच 5 की वैल्यू, एच 5, एच 10, एच 11 कुछ भी एक्स के प्लेस पे हम रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगी, 11 ही आएगी, इसलिए एच एक्स की वैल्यू कितना है, 11। अब आपको आंसर मिल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ln x बेस एक्स। अब आपको फाइंड करना है एफ डैश ई की वैल्यू क्या होगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से बेस दोनों के बेस को ई लिखेंगे और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में इसको हम लिख दें। नाउ एफ डैश एक्स अब निकालेंगे, नीचे वाला भी फंक्शन एक्स का है और ऊपर वाला भी एक्स का है, तो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल होता है तो वहाँ से निकालेंगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है, फिर डिनोमिनेटर को 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स के प्लेस पे ई रखेंगे तो हमें ऐसा मिल जाएगा, आंसर 1/e आ जाएगा। इसी प्रकार y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, और ऐसे डिनोमिनेटर का ये टर्म है, ये बोल रहा है कि इनकी वैल्यू 0 से लेके π/4 के बीच में लाई कर रही है। नाउ व्हाट यू विल डू, जस्ट यूज सम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज। How you will use trigonometry formula, you know this term, how you will write this, so you have to write in this case like you have to solve root 1 plus sin x in terms of some arrangement of trigonometric, like 1 you can write 1 as cos square x by 2 plus sin square x by 2 is equal to 1. So put this value at a place of 1 and sin x is equal to 2 sin x by 2 into cos x by 2. When you will put this term, then you will get y is equal to cot inverse cot x by 2, cot cancel out, you will get y is equal to x by 2 and differentiate dy by dx is equal to 1/2, because differentiation of ex is equal to 1 and 1/2 is a constant, so dy by dx is equal to 1/2. Now differentiation of determinant। अब डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट के डिफ्रेंशिएशन के लिए कुछ फार्मूले होते हैं। एफ एक्स इक्वल टू अगर ऐसे लिखा f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x और h1x, h2x, h3x। सो एफ डैश एक्स आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले ये फर्स्ट वाली जो रो है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, दोनों को वैसे सेम लिखना है, प्लस दूसरे रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दोनों रो को सेम लिखना है, तीसरे का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम कर देंगे और दोनों रो को सेम लिखना है, और इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स हुआ। नाउ सॉल्व सम क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स कॉट एक्स, मतलब एक क्वेश्चन आपको एफ एक्स फंक्शन दिया और पूछ रहा है कि डी क्यूब एफ बाई डी एक्स क्यूब, आपको x इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, पहले इस लाइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों को सेम लिखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, फिर दूसरे लाइन का करेंगे और दोनों को सेम रखेंगे, दूसरे लाइन का करेंगे तो ये कांस्टेंट है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये टर्म पूरा, जब किसी भी मैट्रिक्स का एक रो या एक कॉलम 0 होता है तो पूरी मैट्रिक्स पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो दिस विल बिकम 0। थर्ड क्या होगा कि इन दोनों को सेम रखेंगे, इसको डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये भी कांस्टेंट है तो ये भी 0 हो गया। अब हमारे पास एक बार और करेंगे तो ये वाला केवल डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि एक्स इक्वल टू 0 रख देना, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो अब ये दोनों टर्म तो पहले 0 हो गए, अब एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन करता है, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे।
अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ऐसा कुछ टर्म मिल जाएगा, और इसमें इसको आप जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यह 3 टाइम्स डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ और x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू रहेगी वो 0 मिल जाएगी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट set of series where you have to do some arrangement. Mathematics, what people thinks mathematics is like if you know formula then you can solve. No, knowing formula is a good thing, but if you don't do your understanding about the mathematics, if you don't develop your understanding about the mathematics, then you will be facing some problem, because in mathematics every time you need to think how you can solve the problem. So in this problem you have to find out the summation of this term 1 upon 1 plus x plus 2x upon 1 plus x in this way, like pattern is like in this way. So if you want to sum this term up to infinity and it is written mod x is less than equal to 1, एक से बहुत छोटा है. तो if you will apply some kind of series or some kind of other arrangement, then you can go to a closed solution. But if you will think how this term relates to another term, then you can get, like let us assume if you have 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x to the power 4, these term आपको n टाइम्स तक ऐड करना है, तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n. अब दोनों साइड में यहाँ पे हमने ये लिख दिया. अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को 1 माइनस एक्स को भी इंक्लूड करके, अब इस पूरे को हमने ऐसा लिख दिया. अब 1 माइनस एक्स को हमने इस साइड लिया, बचा क्या, यही वाला टर्म बचा. तो इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं ना. अब x की वैल्यू बहुत छोटी है तो उसकी पावर 2 पावर करेंगे या n टाइम्स तक पावर करेंगे तो x की पावर अगर 1 होती है तो x आता है, लेकिन x की वैल्यू 1 से छोटी है और उसकी जितनी पावर बड़ी होती जाएगी वो वैल्यू उतनी गायब होती जाएगी, डिसअपीयर होती जाएगी. तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया. अब इधर का भी लॉग लेंगे, इधर का भी लॉग, दोनों साइड का लॉग लेंगे तो हमें ऐसा मिल जाएगा. अब इस पूरे टर्म का जो सम होगा n टाइम्स तक वो 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स होगा. तो थोड़ा सा ट्राई टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, देन यू कैन इजिली कम टू द सोल्यूशन. लाइक इस पूरे को आप सम करेंगे तो कितना मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. एंड डोंट पीपल विल फॉलो द पैटर्न इन सच ए वे दैट इट इज इजी टू गो नियर द सोल्यूशन. लाइक और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन दी, जैसे यहाँ पे कंडीशन दी है मॉड एक्स लेस देन बहुत ही छोटा 1 से है, तो इसका हमने यूज यहाँ किया. तो अगर कोई कंडीशन दी रहे तो उसको आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम स्टेप पे आप उसको ज़रूर ध्यान में रखिए. नाउ लास्ट स्टेटमेंट इज डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट अनलेस यू सॉल्व इट. Mathematics is not about remembering the formula, not about remembering the question, but it is all about the practice different kind of questions. Concept will be remain same. जैसा हमने आपको जो पाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे हमने आपको जो मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 16 तक जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे. इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नया आ रहा है तो उसकी जो अप्रोच है सॉल्व करने की, वो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
एक दो स्टेप लगाएंगे हो सकता है फंस जाएं, फिर एक दो स्टेप लगाएंगे हो सकता है फंस जाएं, बट यू हैव टू कंटिन्यू विथ द डिफिकल्ट क्वेश्चन many times. So difficult questions are difficult unless you solve it. Now revise more and more, then you can develop your own concept to solve the questions. Now अगर आपने अभी तक पाई स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और आने वाली समस्त वीडियो को आप देखते रहिए, अपनी लर्निंग डेवलप कीजिए। अगर किसी भी पार्ट में कोई भी प्रकार की कोई समस्या आपको हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, जिससे हम आपको वो सारी चीज़ें फिर से या फिर किसी और नए तरीके से आपको हम बताने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।